Welcome to all in my new lecture carbon-carbon multiple bond reaction. This reaction is electrophilic addition reaction of alkene. This is the lecture first. At first, we know about what is the addition reaction and what is the electrophilic addition reaction. Addition reactions are those reactions in which two molecules of reactant after reaction convert into one molecule of product. When two molecule of reactant react to each other and to give one product, one molecule of the product is called as addition reaction. What is the electrophilic addition reaction? In electrophilic addition reaction, substrate react with electrophile and gives the product. This type of reaction is called electrophilic addition reaction. The example of electrophilic addition reaction is ethene. Let us consider ethene react with any electrophile like this. This bond is break down toward this direction and this carbon have positive charge and this carbon have slightly negative charge. And this step is the first step and the slow rate reaction, slow step, and this is the rate determining step. This carbanion attack on this electrophilic center and it convert into reaction intermediate carbocation. This one is the carbocation. Electrophile connect this direction and this is the carbocation. After this Y negative is attack from antiposition of this electrophile, and this type of reaction is anti-addition type reaction and electrophilic addition reaction. Electrophile, incoming electrophile and incoming nucleophile are antiposition to each other. In this lecture we have different three table of content: reaction of symmetrical unconjugated alkene with electrophile and their molecular interaction and their mechanism. Electrophilic addition reaction of alkene with bromine. At first, you know the color of bromine is brown in color, and if you conduct unsaturation test, alkene react with aqueous solution of bromine to give colorless solution. It means that the given compound have unsaturated bond, means double bond present. In this reaction, this is the reaction when alkene react with bromine in the presence of carbon tetrachloride solvent, it will convert into dibromo compound. In this reaction, pi bond behaves as a nucleophile and antibonding orbital of bromine behaves as a electrophile. Generally, you know, the pi bonds are weaker than sigma bond. जो पाई बॉन्ड होते हैं वो वीक होते हैं सिग्मा बॉन्ड से, जिसके कारण पाई बॉन्ड आपके न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं. अब बात करते हैं कि क्या एल्कीन में केवल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही पॉसिबल है? ऐसा नहीं है. जनरली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऐसे एल्कीन में होता है जिनमें लेट अस कंसीडर
CH2 double bond CH single bond C double bond O. In this reactant, this alkene behaves as a electrophilic in nature because of this pi bond is delocalized with carbon double bond O, so that the polarization of this pi bond is toward this carbon double bond O, and in this carbon have positive charge, so that this carbon is electrophilic in nature. So that in this reaction, when alpha beta unsaturated carbonyl group are react with nucleophile, the reaction is nucleophilic addition type reaction. If the alkene is unconjugated, gives electrophilic reaction, electrophilic addition reaction. Next, in next slide, we have the molecular orbital of ethene, pi molecular orbital of ethene. There are two molecular orbital of ethene. One of them is bonding orbital of pi orbital and antibonding orbital of pi orbital. In pi bonding orbital, there have maximum 2 electrons. It means that this is the HOMO orbital, highest occupied molecular orbital. ऐसा ऑर्बिटल जहां पे लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में भरा जाता है और सबसे ज्यादा एनर्जी का होता है वो ऑर्बिटल, उसको हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोला जाता है। उसके जस्ट ऊपर वाला जो ऑर्बिटल है जहां पे लास्ट इलेक्ट्रॉन भरा गया है, उसके नेक्स्ट ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोला जाता है। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जनरली यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज एंड इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब जो दूसरा रिएक्टेंट है वो ब्रोमीन का एंटीबॉन्डिंग सिग्मा एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल है। अगर हम इनके एनर्जी को देखें तो यहाँ पे जो होमो का ऑर्बिटल की एनर्जी होती है वो सिग्मा एंटीबॉन्डिंग ब्रोमीन की एनर्जी से ज्यादा होती है। एनर्जी ज्यादा होने के कारण ये मान लो आपका एल्कीन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी है किसकी, पाई होमो की एनर्जी है, और ये आपकी ब्रोमीन के एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी है, सिग्मा एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी है। तो होता क्या है, ज्यादा एनर्जी वाला जो ऑर्बिटल है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और कम एनर्जी वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो ऑर्बिटल है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। सो दैट होमो ऑफ नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कीन हैव हायर एनर्जी देन ब्रोमीन एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल, सो दैट alkene behaves as a nucleophile and bromine behaves as a electrophile in this reaction. Next, आप सभी को पता है जो पाई बॉन्ड होते हैं वो आपका साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनते हैं। तो कुछ इस तरीके से ओवरलैपिंग हुई है और ये आपका पाई का होमो ऑर्बिटल है। यहाँ पे जो दो लोब हैं, पाई के जो दो लोब हैं वो इंटरेक्ट हो रहे हैं सिग्मा एंटीबॉन्डिंग ब्रोमीन के ऑर्बिटल से, कुछ इस तरीके से इंटरेक्ट हो रहे हैं और एक 3 मेंबर्ड रिंग बन रही है जो आपका 3 मेंबर्ड रिंग ब्रोमोनियम आयन जिसे बोलते हैं। इस कॉम्प्लेक्स को पाई कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। आप सभी को पता है कि जो पाई बॉन्ड होते हैं उसमें एक नोडल प्लेन पाया जाता है, खासकर ये आपका पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल है तो यहाँ पे एक नोडल प्लेन होगा और उस नोडल प्लेन के ऊपर और नीचे पाई इलेक्ट्रॉन जनरली रिवॉल्व करते हैं। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड पोलराइज होते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ ब्रोमीन, और जब ये कंप्लीट रिएक्शन कर लेते हैं तो ये ब्रोमीन एक पाई ऑर्बिटल के अपर लोब से जुड़ जाएगा, दूसरा ब्रोमीन दूसरे कार्बन के ऑर्बिटल से एंटी पोजीशन से ऐड होगा। तो इस एडिशन को कहा जाता है एंटी एडिशन। तो कुछ इस तरीके से इसकी मैकेनिज्म होती है। यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ब्रोमीन के सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल पे अटैक करता है, और जैसे ही ब्रोमीन पे अटैक करेगा ये ब्रोमाइड आयन के फॉर्म में ये लीव हो जाएगा
और लीव होने के बाद कुछ इस तरीके का कुछ समय के लिए एक कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, कुछ इस तरीके का कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, कुछ इस तरीके का कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा। तो ये जहाँ पे कार्बोकेटाइन है वो नॉन क्लासिकल टाइप का कार्बोकेटाइन बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे ब्रोमीन के बाद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे, तो सडनली जैसे कार्बोकेटाइन बनता है वैसे ही ये ब्रोमीन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बोकेटाइन पे अटैक करते हैं और कुछ इस तरीके का ब्रोमोनियम आयन रिएक्शन इंटरमीडिएट बनाते हैं, जो थ्री मेंबर्ड एक स्मॉल साइज का रिंग फॉर्म करते हैं, जो बहुत अनस्टेबल होता है। और ये एक तरफ से जब ब्रोमिनेशन, एल्कीन की ब्रोमिनेशन की जाती है, तो ये इसका रिएक्शन इंटरमीडिएट भी कहलाता है। तो नेक्स्ट स्टेप में होता क्या है, ब्रोमाइड आयन अटैक करता है इस कार्बन ब्रोमीन, दिस इज द कार्बन ब्रोमीन पॉजिटिव एंड दिस इज द एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ कार्बन ब्रोमीन। तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इसके जनरली कार्बन ब्रोमीन के एंटी बॉन्डिंग पोजीशन से ब्रोमाइड आयन, दिस इज द होमो ऑर्बिटल ऑफ ब्रोमाइड, ब्रोमाइड आयन का होमो और कार्बन ब्रोमीन का एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है। और आप सभी को पता है कि SN2 रिएक्शन में लेस हिंडर्ड साइड से कभी भी जहां से लिविंग ग्रुप होगा उसके जस्ट अपोजिट साइड से जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्रोमीन की ओर ज्यादा इलेक्ट्रॉन पोलराइज होते हैं और इसके एंटी पोजिशन पे इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी हो जाती है, और इसी के एंटी पोजिशन से इस लिविंग ग्रुप और कार्बन लिविंग ग्रुप के बीच का जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल का एरिया है वहां से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा थ्रू SN2 मैकेनिज्म। और ये रिएक्शन जनरली इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होती है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ब्रोमीन और दूसरा ब्रोमीन, एक ब्रोमीन ये है और एक ब्रोमीन ये है और दूसरा ब्रोमीन ये है, दोनों एक दूसरे के एंटी पोजिशन पे प्रेजेंट हैं। अगर यहाँ पे मॉलिक्यूल मान लो कि आर ले लें, आपका सिस मॉलिक्यूल है, तो इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा। अगर यहाँ पे ट्रांस है तो इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिस्कस करूंगा। इसके कुछ SN2 मैकेनिज्म के कुछ पॉइंट यहाँ पे मैंने नोट डाउन कर रखे हैं, आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अटैक ऑफ ब्रोमाइड आयन ऑन ए ब्रोमिनियम आयन इज ए नॉर्मल SN2 substitution, bimolecular nucleophilic substitution through less hindered site. The HOMO of the bromide and sigma antibonding one of the two carbon bromine bond is the strained three-membered ring, so that this reaction undergoes through SN2 mechanism. In overall reaction, we have the solvent carbon tetrachloride. If we change the solvent in the last step, hydroxy bromide compound is formed, like if you टेक H2O, यहाँ पर अगर आप वाटर लेते हैं तो वाटर के केस में ये ब्रोमाइड अटैक न करके वाटर यहाँ अटैक कर जाएगा, तो सॉल्वेंट का भी इस रिएक्शन में इफेक्ट पड़ता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका सिन एडिशन और एंटी एडिशन, सिस ट्रांस एल्कीन के एडिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय lecture. Thank you so much.